So hello students, my name is Dr. Yatanjeet Kaur and today we're gonna discuss about the heart pathologies जिसमें first topic जो हम discuss करेंगे that is the myocardial infarction. So what is the meaning of myocardial infarction? So generally यहाँ पे क्या होता है due to the ischemia or you can say due to the decreased blood flow, ischemia की वजह से जो myocardial cells होते हैं ना उनकी डेथ या फिर कह सकते हो नेक्रोसिस हो जाती है. So what is the definition? Here there is a death of myocardial cells. Death of myocardium cells due to ischemia. Okay. Now how this ischemia occur? See, this is the blood vessel. Now in this blood vessels अगर यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग डिपॉजिट हो जाए बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लिपिड देयर इज व्हाट एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग फॉर्मेशन, तो क्या होगा इस कोरोनरी आर्टरी में अभी जो ब्लड फ्लो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा होना था, अब वो बिकॉज ऑफ दिस एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग वो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया. अब क्या हो गया, ये ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया एंड नाउ यू कैन सी कि कितना कम ब्लड इज गोइंग टू द कोरोनरी आर्टरी ऑफ द हार्ट. नाउ सो फर्स्ट नाउ व्हाट इज अ मैकेनिज्म. सो फर्स्ट मैकेनिज्म मैंने आपको जो बताया वो क्या था, atherosclerotic plaque formation, and you can say the complete blockage of the coronary artery is contributing towards the myocardial ischemia. First is atherosclerotic plaque formation and complete occlusion of coronary artery. Okay. Now what is the second mechanism in case of myocardial infarction? That is coronary artery vasospasm. अगर कोरोनरी आर्टरी का वेजोस्पैज्म हो जाए तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एंड दिस डिक्रीज ब्लड फ्लो विल लीड्स टू ischemic necrosis of the myocardial cells. Third is the vasculitis. Third mechanism is vasculitis. Now see, we'll take an example of Kawasaki's disease. This is mainly a vasculitis which is present in our children. Now in case of Kawasaki's disease, what is happening? Due to the inflammation, क्या होगा, जो एंडोथीलियम है ना उसका डैमेज हो जाएगा. अब अगर एंडोथीलियम डैमेज हो गई तो जो कोलेजन प्रेजेंट होता है उसका क्या होगा, वो एक्सपोज हो जाएगा एंड देयर इज ऑल्सो एक्सपोजर ऑफ टिश्यू फैक्टर्स. अब जब कोलेजन एक्सपोज होगा, टिश्यू फैक्टर्स एक्सपोज होंगे तो क्या होगा, देयर विल बी coagulation cascade will come there and it will leads to the thrombus formation there. See, if this is the endothelial vessel, okay, हमने कहा यहाँ पे inflammation has occurred in this part. उसकी वजह से क्या होगा, जब कोलेजन या टिश्यू फैक्टर का एक्सपोजर होगा तो हमारा कोगुलेशन कैस्केड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा,
ऐसे ऐसे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगी. ओके, सो राइट दिस. ड्यू टू इन्फ्लामेशन देयर इज एक्सपोजर ऑफ, देयर इज डैमेज टू द एंडोथेलियम which leads to collagen exposure and tissue factor exposure, जिसकी वजह से क्या होगा, this will allow coagulation cascade to form thrombus. Okay, so this is the mechanism in case of vasculitis. अब थर्ड जो मैकेनिज्म आपने याद रखना है, दैट इज व्हाट, अगर ये थ्रोम्बस अब डिटैच होके इधर उधर ब्लड सर्कुलेशन में घूमे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बोलाई. सो एम्बोलाई कैन ऑल्सो लीड्स टू व्हाट, टू मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. सो फोर्थ क्या है, एम्बोलाई. सो दीज आर द मैकेनिज्म which contributes towards a myocardial infarction. Now see, what are the clinical features in this patient? So, clinical features. This patient will comes to your OPD with a severe crushing chest pain for more than 20 minutes. Severe crushing chest pain for how many minutes? More than 20 minutes. This is the first feature. Now what is the second feature? Generally ये जो pain होगी ना, that will radiate towards the jaw and towards the shoulder. This pain radiates towards shoulder. Mainly कौन से वाला, right or left? Obviously left shoulder and left jaw. Towards left shoulder and left jaw. थर्ड फीचर क्या है अब जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दैट इज डायाफोरेसिस. डायाफोरेसिस क्या होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग. इस पेशेंट में बहुत स्वेटिंग होगी. फोर्थ, जब आप देखोगे इस पेशेंट में डिस्निया प्रेजेंट होगा. डिस्निया विल बी देयर. एंड व्हाट इज द फिफ्थ फीचर, व्हेन यू गिव सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन टू दिस पेशेंट विल टेल यू, डॉक्टर साहब अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ. नाउ ऑन गिविंग नाइट्रोग्लिसरीन, पेन को क्या होगा, पेन विल डिक्रीज एंड सिम्टम्स ऑफ द MI विल बी रिलीव्ड. ओके, दे विल बी रिलीव्ड. So these are the clinical features how a MI patient going to represent in your OPD. Now see, we have told in case of MI there is a ischemia, that is the main cause of myocardial infarction. Okay, now see, this is the heart. This is the left ventricle, this is the right ventricle. Okay, now this is the posterior wall, this is the anterior wall of heart. Now which arteries is gonna supply to heart? See, here there is one artery
This artery is called as left anterior descending artery. This is what? This is on the left side, obviously, so left है. Anterior wall की तरफ है तो left anterior है. And it is descending. So it is left anterior descending artery. Okay, now this left anterior descending artery, mainly it supplies where? It supplies the anterior wall of the heart as well as the anterior segment of interventricular septum. जो एंटीरियर की तरफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसको सप्लाई करेगा और एंटीरियर वॉल को सप्लाई करेगी ये आर्टरी. नाउ देयर इज सेकेंड आर्टरी जो कि यहाँ प्रेजेंट होती है. दिस आर्टरी इज कॉल्ड एज व्हाट? राइट कोरोनरी आर्टरी. दिस इज द right coronary artery. Now this right coronary artery mainly supplies to what? To the posterior wall. क्योंकि ये posterior wall की तरफ है तो ये posterior wall को supply करेगी and it is gonna supply the interventricular septums also. So see, राइट कर रही है पोस्टीरियर प्लस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को. सेम वे में लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग करी एंटीरियर वॉल और सम पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. नाउ देयर इज वन आर्टरी दैट इज प्रेजेंट हियर. दिस आर्टरी इज कॉल्ड एज लेफ्ट circumflex artery. Okay, now this left circumflex artery is going to supply the lateral wall of the heart. It is gonna supply to the lateral wall of the left ventricle. See, got it? So on the basis of what artery is occluded, you're gonna see the symptom or where the ischemic necrosis has occurred. अगर right coronary artery में कोई blockage है तो posterior wall MI होगा. अगर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में ब्लॉकेज है तो इट कैन लीड्स टू व्हाट? एंटीरियर वॉल और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल एमआई भी हो सकती है. एंड अगर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में ब्लॉकेज है तो इट विल लीड्स टू व्हाट? लेटरल वॉल एमआई. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर्टरी देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एमआई दैट कैन बी प्रेजेंट. नाउ सी, अगर दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन which is the most common artery where you gonna see the ischemic necrosis. So what is your answer? Most common artery is the LAD. This left anterior descending is the most common artery for the ischemic necrosis. And same way में if they ask you the opposite question, that is the least common artery, then what is your answer? That is the left circumflex artery. Left circumflex artery. So you have to remember, okay? See students, now we'll draw the structure of the heart. Generally heart की 3 layers होती हैं, endocardium, myocardium and the pericardium. So see, this outer layer of heart, this outer layer of the heart is the pericardium. Pericardium means around जो हार्ट के लेयर होगी उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं. The inside layer of the heart, ये जो लेयर है this is what? This is the myocardium. Can you see? This is the thick layer. तो ये क्या है? मसल लेयर है. This is the myocardium. And अब जो inner most layer होगी ना हार्ट की,
उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द एंडोकार्डियल लेयर. इट इज द एंडोकार्डियल लेयर. दिस इज द एंडोकार्डियम. ओके, सो 3 लेयर्स कौन सी है? एंडो, मायो एंड पेरिकार्डियम. सी, अगर इस्कीमिया हमारी इस लेयर में होता है, इफ दिस इस्कीमिया अकर्स इन द एंडोकार्डियम, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सब एंडोकार्डियल इंफार्क्ट. दिस इज कॉल्ड एज सब एंडोकार्डियल इंफ्राक्ट. ओके, जर्नली ये जो सब एंडोकार्डियल इंफ्राक्ट होता है ना, दिस इज इन्वॉल्विंग लेस देन 50% एरिया ऑफ द हार्ट. लेस देन 50% एरिया इज इन्वॉल्व. तो यहाँ पे आपको जब आप ECG करोगे तो क्या आपको ST एलिवेशन देखने को मिलेगी? ऑब्वियसली नॉट. सो यहाँ पे यू गोना सी NSTEMI, that is non-ST segment elevation MI. यहाँ पे ST segment नहीं होगा. Second infraction जो we gonna discuss is, see here all the three layers of the heart is involved, and this is called as the transmural infraction. Transmural means all the walls are involved. Okay, now here what you gonna see? ये STEMI है कि non-STEMI? It is STEMI. Obviously you gonna see the ST elevation. It is a ST elevation MI. Okay, and what is happening here? The entire wall is involved. Entire walls of the heart are involved. Got it? Now, when we have this MI, how you gonna diagnose? Clinical features ठीक है. Clinical features से तो you can imagine angina भी हो सकता है. So for that we need a definitive diagnosis for that. So for diagnosis, what we gonna do? So first we will go with the ECG. और ECG पे आपको 3 फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी, और वो क्या है? The first finding is you gonna see the ST segment is elevated. ST segment elevation is there. Second, you gonna see there is a pathological Q wave. आपको पता है नॉर्मली ECG पे Q wave नहीं होती. Q wave क्या इंडिकेट करती है? MI. So you gonna see pathological Q wave. जनरली जो Q wave है ना ECG पे, जस्ट इट इज लाइक एक 1 स्मॉल बॉक्स जितनी होती है ये. बट अगर यू गोना सी लाइक दिस काइंड ऑफ Q wave, सो इट इज व्हाट? MI. थर्ड जो फाइंडिंग आपको ECG पे मिलेगी वो क्या है? दैट इज T wave inversion. ओके, सो अगर मैं ECG इसकी ड्रॉ करूं तो इट विल लुक लाइक दिस. This is P wave. This is the Q wave. R. Here there is a ST segment. This is the MI. Okay. So क्या देखने को मिलेगा? Q wave will be there. ये जो ST segment elevation is there. And T wave क्या हो गई? Invert हो गई. T wave
inversion is there. ठीक है, तो एक और चीज़ आपने याद रखना है, जनरली ECG पे आपको कॉन्केविटी मिलती है. ठीक है, कैन यू सी दिस इज व्हाट कॉन्केविटी. कॉन्केविटी इज प्रेजेंट. नाउ सेकेंड जो टेस्ट हम यहाँ पे करेंगे फॉर द डायग्नोसिस ऑफ MI, दैट इज यू गोना चेक द एंजाइम्स. एंजाइम्स देखेंगे हम. कौन कौन से एंजाइम्स देखेंगे? फर्स्ट ऑलवेज जो सबसे सेंसिटिव है दैट इज द ट्रोपोनिन I. Troponin I is the best marker for the diagnosis of MI. This is what? This is a most important marker. Generally जो troponin I होता है ना, इसके लेवल कब राइज करेंगे? It will rise after 2 to 3 hours of MI. It will peaks at 24 hours and ये कब तक इसके लेवल बढ़े हुए मिलेंगे आपको ब्लड में? जनरली फॉर 7 to 12 days. स्टेज फॉर 7 to 12 days. And it is what? It is the most specific and sensitive marker for the diagnosis of MI. Most specific and sensitive marker for MI diagnosis. Okay? So students, अब जो second enzyme यहाँ पे elevate होगा in case of MI, that is what? That is CPKMB. This CPKMB, it is a marker for reinfraction. Marker for reinfraction. So, जनरली ये जो CPKMB है ना, ये इसके लेवल कब बढ़ेंगे? लेवल rises 4 to 6 hours after MI. ओके, और पीक पे कब होंगे? पीक्स एट 24 hours. एंड कब तक पड़े रहेंगे? एंड दे विल रिटर्न टू नॉर्मल बाय 72 hours. ओके, अब जो थर्ड एंजाइम यहाँ पे एलिवेट होगा वो क्या है? दैट इज द LDH. LDH विल एलिवेट. सी LDH की फर्दर टाइप्स हैं. देयर इज LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 and LDH5. But you have to remember that if we're talking about in a blood, अगर हम ब्लड की बात करें तो कौन सा LDH प्रेजेंट होगा? ब्लड में LDH2 ज़्यादा होता है LDH1 से. ओके, एंड अगर हम हार्ट की बात करें, इन हार्ट which LDH is more? That is LDH1 is more than LDH2. But जब MI होती है तब क्या होगा? In case of MI, there is increased level of LDH2 than LDH1 in heart. So जब MI होगी तब क्या होगा? You gonna see blood में अब LDH2 ज़्यादा था पहले, अब LDH1 ज़्यादा हो जाएगा LDH2 से. This pattern is called as LDH flip, or you can say only flip pattern. LDH flip
or flip pattern. It is called as flip pattern. Okay, so this you have to remember related to LDH. फोर्थ जो एंजाइम यहाँ इन्वॉल्व होगा दैट इज व्हाट, मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन विल बी इंक्रीज्ड एंड दिस इज, जो मायोग्लोबिन है ना, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे अर्लीस्ट टू राइज इन MI, दैट इज मायोग्लोबिन, earliest to rise. Okay, so these are the various enzymes that you gonna use for the diagnosis of MI. Now third, for the diagnosis of MI we also use certain stains to, हम stains किस पे यूज करेंगे, डेड हार्ट पे, डेड हार्ट पे वी यूज स्टेन. और कौन सा स्टेन हम यूज करेंगे, दैट इज TPTC. TPTC. This question they have asked in this recent FMG exam, so mark it star. They can ask you this. Okay, what is this TPTC? It is triphenyl tetrazolium chloride. It is triphenyl tetrazolium chloride. Okay, now see, यहाँ पे हमने ये सारा क्या है, स्टेन लिया. दिस इज अ TP, दैट ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, और इसमें हमने ये क्या ऐड किया, दिस इज व्हाट, दिस इज द हार्ट टिश्यू. ये क्या है, ये हमारा हार्ट का टिश्यू है. ओके, अब सी, जॉनसे एरिया में भी इंफ्रैक्शन है. ऑन कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद दिस स्टेन, दैट एरिया विल बी वाइट इन कलर. ठीक है, ये वाइट एरिया जो है ना, ये क्या है, वाइट एरिया इज द इंफ्रैक्ट एरिया. ओके, और ये जो रेड एरिया है, दिस इज व्हाट, दिस रेड एरिया इज द नॉर्मल एरिया. ओके, ये रेड क्यों है, ड्यू टू LDH इज पॉजिटिव हियर. एंड ये वाइट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे LDH नहीं है. सो जस्ट रिमेंबर दिस. ओके, now we will discuss about the morphological findings that you're gonna see in case of MI. So morphological examination. So on morphological examination, what you gonna see, first we will see the gross changes. ग्रॉस चेंजेस क्या होंगे हार्ट में. दूसरा, लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर व्हाट यू गोना सी. एंड तीसरा इज अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. ठीक है, नाउ अगर हम ग्रॉस चेंजेस की बात करें, जर्नली विद इन 12 आवर्स तक, अप टू 12 आवर्स, देयर इज नो चेंजेस सीन इन द हार्ट. कोई भी ग्रॉस चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा हार्ट में. ओनली यू गोना सी इज accumulation of what, that is Dart motilins. You wanna see the accumulation of Dart motilin. Okay, so up to 12 hours कोई ग्रॉस चेंज नहीं होगा, बट क्या होगा यहाँ पे, यू गोना सी एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क मोटिलिन. ओके, एंड आफ्टर 12 hours, you can say after 12
12 to 24 hours क्या चेंजेस होंगे? डार्क मोटलिंग विल बी देयर, दिस डार्क मोटलिंग विल बी prominent, will be prominent. ओके, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा. अब 1 to 3 डेज में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे डार्क मोटलिन विल बी देयर, प्लस यहाँ पे क्या होगा? येलो टैन इन्फ्राक्ट भी होगा. येलो टैन इन्फ्राक्ट विल बी देयर. यहाँ पे भी यू गोना सी येलो टैन इन्फ्राक्ट. ओके, सो नाउ फ्रॉम द डे 12, फ्रॉम 12 to 24 आवर्स के बीच में व्हाट चेंजेस यू गोना सी? सो यहाँ पे आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा? जो डार्क मोटलिन है ना, दिस विल बी प्रोमिनेंट. ये क्या होगा? प्रोमिनेंट होगा. एंड ऑन डे 1 to 3 की अगर बात करें, 1st to 3rd डे के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? डार्क मोटलिन होगा, प्लस नाउ यू गोना सी येलो tan infract will be there. Yellow tan infract will be present. Okay, now on the day 7th or you can say 3 to 7th days पे आपको क्या देखने को मिलेगा? सी डार्क मोटलिन होगा, येलो टैन इन्फ्राक्ट विल बी देयर, प्लस यहाँ पे यू गोना सी हाइपरीमिक बॉर्डर्स. हाइपरीमिक बॉर्डर्स, ठीक है, hyperemic borders are there. So this is the question. They can ask you on day 3 to 7 what is the characteristic features you gonna see on the gross examination. So you have to answer hyperemic borders. And in day 1 to 3 dark tan infract you gonna see. Okay. Now from day 7 to 14, what are the gross changes in the myocardium? That is, the myocardium is now yellowish in color. पूरा yellow हो जाएगा. And on the day 28, day 28 या उससे ज़्यादा और beyond, what you wanna see here? There is a silver white infract will appear. Now the color changes to silver white infract. Got it? और you can say यहाँ पे क्या होगा? Scarring जो है वो complete हो जाएगी. Scarring is completed. So these are the gross changes that you gonna see on the morphological examination. अब what are the light microscopic changes that you gonna see? See, if we talk about less than 30 minutes, less than 30 minutes पे there is no light microscopic changes. Got it? Now अगर अब for more than 30 minutes what you gonna see? यहाँ पे you gonna see there is wrinkling of myofibrils. Wrinkling of myofibrils. See, जो myofibrils होते हैं ना, if this is the heart, if this is the heart, ये क्या है? This is the myofibrils. But in case of MI ये कैसे हो जाते हैं? ऐसे wavy, ठीक है.
So this is the light microscopic finding for less than 30 minutes. Now, on the day 1 to 3, 1 to 3rd डे पे आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा? फर्स्ट, देयर विल बी इंक्रीज न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन. न्यूट्रोफिलिक infiltration is present. Second, what is there? There is the coagulative necrosis. Coagulative necrosis क्या है? जो भी स्ट्रक्चर है सेल का वो प्रिजर्व रहेगा, बट जो न्यूक्लियस है उसकी डेथ हो जाती है. सो जनरली मैंने आपको बताया था कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कहाँ पे होगी? इंफ्राक्ट एरिया में होती है. ठीक है. सो सेकेंड चेंज ये देखने को मिलेगा. थर्ड इज यू गोना सी द कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स. कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स आर प्रेजेंट. These are the findings you're gonna see on 1 to 3rd day. अब अगर हम बात करेंगे फ्रॉम डे 3rd to 7th, तो क्या चेंजेस होंगे यहाँ पे? यू गोना सी कि लिम्फोसाइट्स अब बढ़ने शुरू हो गए हैं. यहाँ पे लिम्फोसाइट्स इंक्रीज हो जाएंगे, प्लस जो मैक्रोफेज हैं उनका नंबर भी बढ़ जाएगा. एंड अगर हम बात करें फ्रॉम द डे 7 to 14th की, डे 7 to 14 व्हाट चेंजेस यू गोना सी? यहाँ पे अब ग्रैनुलेशन टिश्यू आना शुरू हो जाएगा. देयर इज इंक्रीज इन ग्रैनुलेशन टिश्यू. This granulation tissue is gonna increase. You know granulation tissue में क्या होता है? Vessels will be there, fibroblasts will be there, connective tissue will be there. We have already discussed about this. So all the granulation tissue is gonna increase. Now अगर हम बात करें from the day 28 and beyond, so क्या होगा? What you gonna see here? There is a scar formation. Okay. Now we'll discuss about the electron microscopic findings. Electron microscopic findings. So less than 30 minutes की अगर हम बात करें, तो what electron microscopic finding you wanna see here? There is first less than 30 minutes हैं, तो here what is happening? Reversible injury is there. Reversible injury. और अगर रिवर्सिबल इंजरी होती है, वी हैव डिस्कस्ड इन द सेल डेथ एंड अडेप्टेशन, क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग विल बी देयर. सो माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग विल बी देयर. अब अगर माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग हुई तो दिस विल लीड्स टू व्हाट? डिक्रीज एटीपी. ओके. नाउ फॉर मोर देन 30 minutes what is gonna happen? That is irreversible injury. Irreversible injury. Irreversible injury में you gonna see large amorphous densities. याद है आपको हमने irreversible injury में क्या कहा था? कैल्शियम क्या हो जाएगा? कैल्शियम पंप डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से कैल्शियम कंसंट्रेशन सेल में बढ़ गई थी. नाउ बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज कैल्शियम इनसाइड द सेल, क्या हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया में वो कैल्शियम डेपोजिशन शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से यू गोना सी व्हाट? दैट इज लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज विल आर देयर. लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज प्रेजेंट होंगी. ठीक है.
सो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज amorphous densities are present. Okay. Now, if we talk about findings from day 1 to 3, so क्या findings यहाँ पे देखने को मिलेंगी? No findings are present here. Now, from day 3rd to 7 क्या findings होंगी? No findings are there. From day 7 to 14 no findings are there, and from day 28 and beyond no findings are. So only electron microscopic पे आपको first less than 30 minutes या more than 30 minutes पे ही findings देखने को मिलेंगी, else बाकी days पे कोई finding नहीं होगी. Now students, we gonna discuss about the treatment. How you gonna treat the patient with myocardial infarction? So you know, first जब भी कोई पेशेंट आता है आपके पास विद द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हम उसको क्या देंगे? एस्पिरिन. एस्पिरिन देंगे, या यू कैन गिव हेपारिन ऑल्सो. ओके. एस्पिरिन क्या करेगी? प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देती, ये ब्लड को थिन करती है. एंड हेपारिन क्या करेगा? दिस इज अ एंटीकोएगुलेंट. ठीक है. सेकेंड, what you gonna give here, that is the supplement oxygen. Now why we are giving the supplement oxygen? To overcome the ischemia. To overcome ischemia. Third, हम क्या देंगे यहाँ पे? We will give nitrates. Nitrates. और नाइट्रेट्स हम क्यों दे रहे हैं? यू नो नाइट्रेट्स क्या है? दे आर द वेजोडाइलेटर्स. और अगर ये वेजोडाइलेशन कर रहे हैं तो जनरली दे आर डिक्रीजिंग द प्रीलोड, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है हार्ट पे वो भी कम हो जाएगा. सो दे डू वेजोडाइलेशन दैट डिक्रीजेस द प्रीलोड, जिसकी वजह से स्ट्रेस भी क्या होगा? कम होगा हार्ट पे. फोर्थ, what you gonna give here, that is the beta blockers. Now बीटा ब्लॉकर्स का क्या फंक्शन है? ये हमारा हार्ट रेट कम करेंगे. अगर हार्ट रेट कम हुआ तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कंजप्शन भी तो कम हो रही है ना. O2 कंजम्पशन इज ऑल्सो डिक्रीजेस. Okay. Now, fifth medication that you're going to use is the ACE inhibitors. ACE inhibitors. अब ACE inhibitors क्या करेंगे? ये LV की डायलेशन करते हैं. They do LV dilation. दूसरा ये इनहिबिट करेंगे एंजियोटेंसिन 2 को. Now अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? सी, दो फंक्शन होते हैं इसके. पहला, ये ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा. कैसे? किडनी में क्या करवाता है? ADH का रिलीज. एंड ADH क्या करेगा? सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा. अब इसकी वजह से सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम आएगा तो वाटर भी आएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा. अब अगर हम एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली व्हाट वी आर डूइंग, we are decreasing the blood volume. Okay. सेकेंड फंक्शन जो एंजियोटेंसिन का है वो क्या है? दैट इट कॉजेज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ पेरिफेरल आर्टेरियोल्स. इट कॉजेज कंस्ट्रिक्शन ऑफ पेरिफेरल आर्टेरियोल्स. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं? हम एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक कर रहे हैं. तो क्या होगा? ये कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा. अगर ये कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो व्हाट इज गोना हैपन? जो आफ्टर लोड है, आफ्टर लोड
that is gonna decrease. तो angiotensin 2 blocker से we are decreasing the afterload. ठीक है, ये जो इनिबिटरी एक्शन है ना इस इनिबिटर का एंजियोटेंसिन 2 पे, उसकी वजह से हमारा क्या आफ्टरलोड कम हो रहा है, बिकॉज हम पेरिफेरल आर्टेरियोल्स की कंस्ट्रिक्शन नहीं होने दे रहे हैं. ठीक है, आफ्टरलोड अगर कम हुआ तो ऑब्वियसली स्ट्रेस भी हार्ट पे कम होगा. नाउ दिस इज ऑल द ट्रीटमेंट दैट यू गोना यूज इन केस ऑफ MI. पर ये तो एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, पेशेंट आया, आपने ये ट्रीटमेंट यूज करके उसको स्टेबल किया. नाउ व्हाट इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर दिस कंडीशन? डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, फॉर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, यू गोना यूज फिब्रिनोलाइसिन एंड यू गोना डू एंजियोप्लास्टी. फिब्रिनोलाइसिस एंड एंजियोप्लास्टी करेंगे हम इस पेशेंट की. ओके, सो दिस इज अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द MI पेशेंट. नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ MI? कॉम्प्लिकेशंस, अब जब भी MI होती है तो क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं उसके बाद. For that you have to remember a mnemonic, that is PACT. P here stands for pericarditis. Pericarditis. A stands for what? That is aneurysm. C stands for contractile dysfunction. कॉन्ट्रैक्टाइल क्यों? बिकॉज अगर मसल मायोसाइट्स को डैमेज हो गया तो ऑब्वियसली वो मायोसाइट्स जो डैमेज हुए हैं वो पूरी लाइफ के लिए डैमेज हो गए हैं, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होगी, कम हो जाएगी. सो कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन इज देयर. एंड टी से क्या होगा? थ्रोम्बस फॉर्मेशन कैन अकर आफ्टर MI. अब ये जो पेरिकार्डाइटिस होती है ना जनरली, इसके लिए देयर इज वन सिंड्रोम, दैट इज द ड्रेसलर सिंड्रोम. ड्रेसलर सिंड्रोम क्या है? इट इज एक्चुअली अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो कि MI के बाद होता है. जनरली इट अकर्स 1 to 3 weeks आफ्टर MI. ओके, और यहाँ पे इन केस ऑफ ड्रेसलर सिंड्रोम यू गोना सी व्हाट काइंड ऑफ पेरिकार्डाइटिस, दैट इज फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस. और यू कैन से यहाँ पे क्या होगा, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस भी हो सकती है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.